Welcome back to MBBS Clinicals. We are aimed to make MBBS study more interesting and engaging. For the same, we have brought you an album, a playlist of diseases of fancy names. We will cover various diseases including all diseases of the fancy names like Noonan syndrome, Sheehan syndrome, Apla syndrome, Prader-Willi syndrome, Angelman syndrome, broken heart syndrome, and many more. We'll make a video of your choice, so you can put it in the comment box, a video or the topic which you want. Today we'll start our discussion of Prader-Willi syndrome. The first thing, ये Prader-Willi syndrome किताब में कहाँ मिलेगा? The first thing, the textbook thing is कि when you will be reading endocrinology from medicine, there will be a topic of congenital hypopituitarism. There you will find Prader-Willi syndrome. तो पहली बात, कॉन्जेनाइटल हाइपोपिट्यूटरिज्म मतलब इसका जो प्रेजेंटेशन होगा इट विल बी इन चाइल्डहुड. अर्ली चाइल्डहुड में बच्चों में इसके फीचर्स आने लगेंगे. क्या फीचर्स है वी विल सी. लेट्स टॉक अबाउट कॉन्सेप्ट. Prader-Willi syndrome is related to gene present on chromosome number 15. Which gene? We clearly don't have any idea. Not the standard books have. Before going any further, let's know about a keyword, imprinting. Some might have heard it. Imprinting means gene silencing or gene inactivation. Also, we know that for each gene we have two copies, one paternal and one maternal. So what happens to this gene on chromosome number 15 that causes Prader-Willi syndrome? Let's see. Normally, in a normal person, there is imprinting of maternal gene present on chromosome number 15. And I told you imprinting means inactivation or silencing, which means the only active gene is the paternal copy of that gene. So, what happens in Prader-Willi syndrome actually? There is deletion of paternal gene, which means the active copy of the gene got deleted, or there can be disomy of maternal gene, which means the inactive copy got duplicated. What does it mean? जो जीन एक्टिव था वो जीन हट गया और जो जीन इनएक्टिव था वो जीन डुप्लीकेट हो गया. दैट इज द एक्टिव जीन गॉट डिलीटेड और द इनएक्टिव जीन गॉट duplicated. So there is deletion of the active gene and or duplication of the inactive gene. What effects does it cause? We will see in the clinical symptom. The most significant clinical symptom of Prader-Willi syndrome is acromicria. What is it? Let's see. It means small hands and feet. These children characteristically have very small hands and feet. There are various other symptoms like mental retardation, gynecomastia, genital hypoplasia and many more. उनको याद रखने के लिए we'll try to write them in order. So the next slide will be about clinical features. So the first thing that I told you was acromicria. Acromicria was short arms and leg. Now the other symptoms are, look, symptoms याद रखने का बेसिक सिंपल तरीका है कि हम लोग ऊपर से नीचे मूव करें. सबसे पहले ब्रेन का होगा मेंटल रिटार्डेशन. दीज चिल्ड्रन विल हैव मेंटल रिटार्डेशन. देन उसके बाद हम लोग आते हैं फेस पे. तो दे हैव अ वेरी टिपिकल फेशियल अपीयरेंस. ठीक है, इनमें आलमंड आई इज सीन, मतलब जो आंखें होती है वो आलमंड की तरह होती है. दे हैव अ ब्रॉड नेजल ब्रिज एंड द अपर लिप इज वेरी थिन. इसके कारण ये बच्चों को हम लोग देख कर ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं. वी विल ऑल्सो मेक अ सीरीज ऑन एबनॉर्मल फेशिस. वहाँ पे हम लोग इसके फोटो को भी शेयर करेंगे. द थर्ड, अगर हम लोग फेस के बाद नीचे आएँ तो गायनेकोमास्टिया, मेल चाइल्ड डेवलप ब्रेस्ट. सेंट्रल ओबेसिटी. सेंट्रल ओबेसिटी होने का कारण होता है कि 2 साल की उम्र के अराउंड ही इन बच्चों में हाइपरफीजिया डेवलप होता है. मतलब दे आर ऑलवेज हंग्री, दे ऑलवेज ईट समथिंग, जिसके कारण सेंट्रल ओबेसिटी डेवलप होता है. एंड वी नो कि अगर सेंट्रल ओबेसिटी डेवलप होगा तो इट लीड्स टू रिस्क ऑफ डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2. सो इट इज ऑल्सो क्लिनिकल फीचर. अगर हम लोग फर्दर नीचे जाएंगे एब्डोमेन से तो हम लोग को वी सी दैट द जेनाइटल्स आर वेरी लेस डेवलप्ड. जेनाइटल हाइपोप्लेजिया इज सीन, विच मीन्स अगर मेल चाइल्ड है तो टेस्टिकल और उसका पेनिस का डेवलपमेंट नहीं होगा, और फीमेल चाइल्ड है तो उसका क्लाइटोरिस और लेबिया का डेवलपमेंट नहीं होगा. अगर हम लोग अब ओवरऑल इसके बॉडी में बात करें तो देयर इज मसल हाइपोटोनिया. व्हाट डज हाइपोटोनिया मीन्स? हाइपोटोनिया मीन्स कि मसल में स्ट्रेंथ नहीं है, वीकनेस है, पावर नहीं है.
मसल में वीकनेस होने के कारण इस चाइल्ड का वेरियस मूवमेंट इज अफेक्टेड. फॉर एग्जांपल ही विल हैव फ्लॉपी आर्म्स. ठीक है, इनका बोलने, द स्पीच इज अफेक्टेड, सकलिंग इज अफेक्टेड. एंड आई टोल्ड यू कि हम लोग इसको किस टॉपिक के अंदर पढ़ रहे हैं, हम लोग इसको पढ़ रहे हैं कॉन्जेनाइटल हाइपोपिट्यूटरिज्म के अंदर. तो दिस विल ऑल्सो मैनिफेस्ट विथ हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म. हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म, आई टोल्ड यू अबाउट हाइपोगोनाडिज्म, जिसमें मैंने आपको बताया कि जेनाइटल हाइपोप्लेजिया देखने को मिलेगा. हाइपोगोनाडोट्रोपिक मतलब ग्रोथ हार्मोन भी नहीं निकल रहा होता है. दैट्स व्हाई दीज चाइल्ड आल्सो हैव शॉर्ट स्टेचर. तो दीज वर ओवरऑल द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ प्रेटर-विली सिंड्रोम. मेंटल रिटार्डेशन, फेशियल एब्नॉर्मेलिटी जिसमें हम लोग का आलमंड आई दिखता है, गायनेकोमास्टिया, सेंट्रल ओबेसिटी. सेंट्रल ओबेसिटी क्यों हुई? बिकॉज ऑफ हाइपरफेजिया. हाइपरफेजिया से हुई सेंट्रल ओबेसिटी. सेंट्रल ओबेसिटी से हुई टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस. नीचे आएंगे तो जेनाइटल हाइपोप्लेशिया. ओवरऑल बात करें तो मसल में हाइपोटोनिस के कारण सकलिंग और स्पीच अफेक्टेड होगा. और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये बच्चे जो होंगे इनका शॉर्ट स्टेचर होगा बिकॉज ऑफ हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म. इसके अलावा आई टोल्ड यू वेरी फर्स्ट द एक्रोमाइक्रिया विच इज शॉर्ट आर्म्स एंड legs. So how will you diagnose these patients? Diagnosis basically based on clinical history. A detailed history needs to be taken कि सिम्टम कब से अपीयर हुए, किस वे में प्रोग्रेस किए. ठीक है, तो दे विल टिपिकली गिव अ हिस्ट्री ऑफ कि 2 साल के उम्र में बच्चे को बहुत ज़्यादा भूख लगती थी. वी कैन डू क्लिनिकल एग्जामिनेशन फॉर फ्लॉपी आर्म्स, दैट इज द हाइपोटोनिया. But to confirm the diagnosis we will have to do genetic testing. For example, fish. जेनेटिक टेस्टिंग में हम लोग अगर करें तो हम लोग को 15 क्रोमोसोम पे, जैसे मैंने आपको बताया, 15 क्रोमोसोम के लॉन्ग आर्म पे यानी 15q का डिलीशन देखने को मिलता है. दैट्स हाउ यू मेक द डायग्नोसिस. व्हाट इज द ट्रीटमेंट एंड व्हाट इज द प्रिवेंशन. फर्स्ट टॉक अबाउट प्रिवेंशन. अगर किसी के फर्स्ट चाइल्ड को प्राडर-विली सिंड्रोम डायग्नोज है तो बिफोर टेकिंग द नेक्स्ट प्रेगनेंसी वी आस्क देम टू गो फॉर जेनेटिक काउंसलिंग. That's it. And how do we treat the patient? The treatment is basically symptomatic. ठीक है, the various kind of doctors of various field like endocrinologists, pediatrics, obstetrics, speech therapist, physiotherapist, all have to come together and we do symptomatic treatment. For example, since the child cannot speak properly, we have to give him speech therapy. Since he is lacking growth hormone, we have to supplement him growth hormone, and like that we have to treat him symptomatically. So that's it, guys. A very rare Prader-Willi syndrome, but very interesting disease. So many organ systems involved, and that's the essence of understanding and learning things in more systematic way. Look, किसी भी डिजीज को हम लोग को अगर बात करना हो तो वी टॉक अबाउट कि वो कैसे नॉर्मली क्या होता है, क्या इफेक्ट होने के कारण हुआ, क्या क्या फीचर्स आते हैं, हाउ यू आर गोना डायग्नोज इट, हाउ आर यू गोना ट्रीट इट. So that's what from my side Prader-Willi syndrome, what at MBBS level we need to know. We'll bring up more interesting stuff for you. Stay tuned to us. The channel is MBBS Clinical. Please do like, share and subscribe. Thank you.